Assalamu alaikum, students of class 9th. How are you all? Hope you all will be fine. Class, in the previous lectures we have studied about the ionic bonding and the covalent bonding, and we compared the characteristics of ionic bonding and covalent bonding. Class, now in this lecture, it is my lecture number 30, and you know that we are studying chapter number 5, chemical bonding. In lecture number 30 class, we will study about the electronegativity. I hope you remember that we have studied about the electronegativity in chapter number 4. Recently we have studied it. Okay, electronegativity. We have studied it in the some periodic functions of the atom in chapter 4. Now again we will repeat electronegativity, and because it is given the chapter, and we will see its table of electronegativity. The power of an atom to attract the, right, it is the electronegativity is the power of an atom. Power of an atom to attract the shared pair of electron, shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. Right class? Definition क्या है? Definition है the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. यानी किसी एटम की वो पावर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ठीक है, उनमें से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, अट्रैक्ट किए रखता है, दैट इज नोन एज द electronegativity. Now I will give you the example and I will explain it with the help of example. For example class, we have the example of HCl, hydrochloric acid. It is also called as the hydrogen chloride. Class, it is HCl. The electronegative value of hydrogen is 2.1. You can see there is a table class. ठीक है, ये देखिए there is a table is provided in the book. So in the book the values of the elements have been given here, right? So you can see that the first element is lithium here, beryllium, ठीक है, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, ठीक है, sodium, magnesium, aluminium, then silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, right? All the elements are given here. सही क्लास, यहाँ पे एलिमेंट्स सारे लाइन से गिवन है, उसके नीचे वैल्यूज लिखी हुई है. वो वैल्यूज क्या हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं जो साइंटिस्ट ने हमें बताई हैं और रिकॉर्डेड हैं, और वो हमें जो इम्पोर्टेंट है उसके एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए. ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 while the electronegative value of chlorine is 3.0 you can write, और simply it is 3, right class? तो 3 इसकी वैल्यू है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ज़ाहिर है obviously the value of chlorine is higher than the hydrogen. The electronegative value of chlorine is higher than the hydrogen. तो होता क्या है class, like it is hydrogen and it is the chlorine and they are formed by the covalent bonding. आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था recently, they are formed by the single covalent bonding. ठीक है, single covalent bonding के थ्रू फॉर्म होते हैं. तो क्या होता है जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होंगे तो वन इलेक्ट्रॉन इसका होगा, वन इलेक्ट्रॉन इसका होगा, राइट क्लास? दिस आर टू इलेक्ट्रॉन्स हियर. अच्छा, होता क्या है प्रैक्टिकली, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है क्लोरीन की. ये क्या करता है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. यानी क्लोरीन पावरफुल है और कोई अगर रिएक्शन करने के लिए आता है HCl से तो क्लोरीन रेजिस्ट करेगा, क्लोरीन जो है कोशिश करेगा वो उसको हाइड्रोजन ना दे जब तक कि कोई एलिमेंट क्लोरीन से ज़्यादा पावरफुल ना हो, वो हाइड्रोजन के एलिमेंट को उससे नहीं ले सकता. फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज एन लाइक फॉर एग्जांपल नॉट सपोज देयर इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4, राइट? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है क्लास? 4 है. ठीक है, इसकी क्या है? 3 है, राइट? और इसकी क्या है? 2.1 है. अब फ्लोरीन अगर रिएक्शन के लिए आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिसीव कर लेगा, गेन कर लेगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो ये क्लोरीन से इसको
ले लेगा, इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ पेयर बना लेगा। और क्या पेयर बनाएगा? इट कैन मेक द पेयर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये इसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा। ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसके साथ पेयर बनाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर इसकी पावर लाइक कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ एलिमेंट लाइक लिथियम, ठीक है, अगर लिथियम आ जाए यहाँ से, ठीक, सपोज कि लिथियम रिएक्शन करने के लिए आता है, ठीक है, तो क्या होगा? लिथियम की पावर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू इज 1, ओनली 1। तो 3 से कम है ना इसकी पावर, तो लिथियम हाइड्रोजन को इससे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इससे छीन नहीं सकता, इसे ले नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज इट इज लेस पावरफुल। लिथियम बहुत वीक है इस क्लोरीन के कंपैरेटिवली, ठीक है ना, क्लोरीन से कंपेयर करें तो लिथियम बहुत वीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, इससे ये कम पावर का है, तो ये हाइड्रोजन को इससे नहीं ले सकता, राइट, बिकॉज इट डजंट हैव द पावर। लेकिन क्या है? फ्लोरीन हैज द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 व्हिच इज मोर देन फ्लोरीन, तो इसकी पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को फ्लोरीन से अट्रैक्ट कर लेगा और फिर पेयर बना लेगा, राइट क्लास? सो इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। Okay, in this table class, different values are given here. I will guide you for the important elements. Important elements को मार्क कर लें, टिक मार्क कर लें इस टेबल के अंदर, जो आपको याद होनी चाहिए इनकी वैल्यू। हाइड्रोजन, अब बुक में अपने रजिस्टर में लिख भी लें। हाइड्रोजन, लिथियम इज लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम, ये सब याद होनी चाहिए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, F, ठीक है ना, सोडियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट का? कैल्शियम तक आप सारी वैल्यूज जो है बिल्कुल इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें, याद करने से अच्छे से मेमोराइज कर लें। ओके नाउ क्लास, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच इज टोल्ड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉपिक, दैट इन दिस टेबल cesium is the element which has the lowest electronegative value, that is 0.7. ठीक है, cesium is the element which has the lowest electronegative value, that is 0.7, and fluorine is the element which has the highest fluorine. Look at the spelling, Fluorine, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कैसे याद कर लें? अक्सर बच्चे इसकी मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि फ्लोरीन की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिख देते हैं, FLOU लिखते हैं वो, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। क्या है? FLOURINE, दैट इज रॉन्ग, राइट क्लास? डोंट राइट दैट, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। FLUORINE, फ्लोरीन, राइट, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज 4। क्या है? 4 है, 4.0 भी लिख सकते हैं, सिंपली आप 4 नंबर 4 भी लिख सकते हैं, राइट क्लास? So the in the table the least electronegative value is possessed by cesium and the highest electronegative value is possessed by the fluorine. ठीक ना? तो ये आपके पास वैल्यूज हैं सबकी, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी और भी वैल्यूज गिवन है। लाइक क्लास वन मोर थिंग, अगर आप टेबल में देखें तो टेबल में जो है आपके पास सीजियम की वैल्यू जो है 0.7 है, राइट, और जो है आई थिंक कोई और एलिमेंट, हाँ, इसी के नीचे एक एलिमेंट है फ्रेंशियम। अगर आप टेबल फॉलो करें इसको, जिसमें आप देखिए CS लिखा हुआ है 0.7, ठीक है, और यहाँ लिखा है फ्रेंशियम Fr, राइट, इसकी वैल्यू भी 0.7 दी हुई है। सो डोंट बी मिसगाइडेड, ठीक है ना। ये जो है 0.7, यहाँ पे जो है आगे पता पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स और आते हैं, तो अगर इसके 3 नंबर्स नहीं लिखे हुए, सभी 1 नंबर लिखा, 1 नंबर लिखा। अगर हम 3 नंबर लिखें, सीजियम में 3 नंबर लिखें और फ्रेंशियम के में 3 नंबर लिखें, तो सीजियम की वैल्यू लो आती है, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है फ्रेंशियम की, और सीजियम की वैल्यू लो होती है, तो इसलिए जो है ये सीजियम को जो है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इसको मानते हैं हम, ठीक है। फ्रेंशियम नहीं है, इसलिए कि टेबल में 0.7 गिवन है, तो स्टूडेंट को बार दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो है दोनों का क्यों सेम है वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उससे माइंड में आ सकता है, आना चाहिए कि जो है दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। सीजियम को लोएस्ट क्यों कहा गया है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू एलिमेंट क्यों कहा गया है इसको, तो रीजन ये क्लास में 0.7 के बाद हम 3 नंबर्स हैं, तो सीजियम की वैल्यू ज़्यादा लो होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके क्लास,
Now class, it is the time to take the homework, right? In homework, I am giving you the question related with electronegativity. The question is that आपने शायद पहले भी इसे क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन दोबारा कर लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। जो चैप्टर 4 में किया है उसमें से भी जो न्यू पॉइंट्स है वो ले सकते हैं आप। ठीक है, ग्राफ भी ले सकते हैं उसमें से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यहाँ से भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे टॉपिक से। तो दोनों को मर्ज कर लें करके बहुत एक अच्छा सा नोट बना लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक नोट बना लें। तो आपको अगर सपोज एग्जाम में नोट के फॉर्म में आता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यू कैन गेट द मार्क्स इजीली। ओके, क्वेश्चन इज दैट डिफाइन electronegativity. You know that you can write the here it is the short form of the electronegativity. तो आप पूरा लिखें, ठीक है, और जो है जहाँ बार बार रिपीट हो रहा है वहाँ पे आप जो है इसको EN लिख लें। ठीक है, डिफाइन electronegativity, write the values, write the electronegative values of few important elements in periodic table। ठीक है, define electronegativity, write the electronegative values of few important elements in periodic table। तो इसमें आपने जो है डेफिनेशन लिखनी है मुझसे। डेफिनेशन तो आपको यहीं पे मिल जाएगी क्लास, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास डेफिनेशन यहीं पर है, इसी पेज के ऊपर जो वर्टिकल लेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई कैन शो यू, ये देखें, द पावर ऑफ, राइट क्लास, the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as the electronegativity, right class, you can see it। और जो है यहाँ से वैल्यूज़ जो है आपको टेबल में जो आपको मैंने कैल्शियम तक बताई हैं, तो वो इसमें से लिस्ट बना लें एलिमेंट्स की, जैसे कॉलम बना लें आप, कॉलम बना के लाइक कॉलम बना लें, कॉलम बनाकर उसको आगे लाइक एलिमेंट्स कॉलम बना लें, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज 2 कॉलम बन जाएंगे। ठीक, कैसे बन जाएंगे? एलिमेंट्स कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ से नाम आ जाएंगे, यहाँ पे नेम आ जाएंगे, और यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, एलिमेंट्स की वैल्यू, एलिमेंट्स की वैल्यू, इस तरह से आप करके इसको कर दें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन इज नॉट फिनिश, अभी ये कंटिन्यू है। यहाँ तक क्वेश्चन किया आपने, इसके आगे लिखिए name the element which possesses lowest electronegative value and which possesses highest electronegative value, right class? Value, full stop। ठीक है, name the element which possesses lowest electronegative value and which possesses highest electronegative value, right class? So you have to give the answer in complete sentences। ठीक है, हाफ सेंटेंस में आंसर मत किया करें, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस में प्रॉपर क्लियर आंसर करें। क्वेश्चन क्लियर है, आंसर भी क्लियर करें क्लास। सो आंसर शुड बी लाइक दिस, cesium is the element which possesses, cesium is the element, नेम की जगह cesium आ जाएगा, cesium is the element which possesses lowest electronegative value, right? Then next, fluorine is the element which possesses highest electronegative value। That is only the answer, simple answer है, right class? So you have to give the answer in this way। So we have completed the topic of इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्लास, ये हमने कर लिया है। प्लीज़ होमवर्क सबमिट करवाइए प्रॉपर्ली, जो है अप टू डेट अपना वर्क रखिए, अपना काम साथ साथ करते रहिए, वरना जो है आपको बाद में फिर जो है होमवर्क बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा तो बर्डनाइज हो जाएंगे। सो प्लीज़ सेंड योर रजिस्टर्स फॉर होमवर्क
ठीक है, तो कंप्लीट होमवर्क करें, तो क्वेश्चन मिस ना करें, लेक्चर थोड़ा सा चेक कर लिया करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो साथ लेक्चर वाइज आपको क्वेश्चन होमवर्क जो है मिलता रहता है, तो अपने जो है लेक्चर का नोट चेक कर लिया करें, लास्ट में टैली कर लिया करें कि क्वेश्चन मिसिंग ना हो, ठीक है। तो क्लास प्लीज डू इट इन द रजिस्टर्स, it is important topic by the examination point of view, so you please do it, okay. And if you have any query, any question, any problem, then you can share me without any fear, right? You can with a piece of paper, without any hesitation, right? Without any hesitation, you can share with me your problems or any query, right class? Thank you. Allah Hafiz. Take care.